किया आँख बुझाया सेवती सच्चे समय तिनको क्या उपदेश दिया जिन गुरु नानक दे जवाब देने पैने हैं। 9 पातशाह तक चली 10ਵੇਂ पातशाह ने फिर अगली बार ही दसांगे। पहला 10ਵੇਂ पातशाह की सी ਅਸੀਂ एक छोटा ਜਿਹਾ पेपर पढ़ना है बच्चे ना वो पढ़ के फिर ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਾਂ शुरू ਕਰਾਂਗੇ भी 10ਵੇਂ पातशाह ने की ਕੀਤਾ। इस करके वो पेपर अंग्रेजी च होएगा क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। साढ़े सारे प्रोग्राम सारी दुनिया अनलोड कर रही है इंटरनेटा से। तो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ शुरू कर रहे हैं भी अगर ये पीढ़ी बच गई तो साडा ज्ञान सारे फैल जाऊगा। इस करके आओ पेपर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ते पढ़नगे सारा। और ये पेपर घर ले जाना है बाह बच्चे तुहाडे जिहड़े ऐसे स्कूलों सारिਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਾਪੀਆਂ कर वंडो। 10ਵੇਂ पातशाह ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਕਾ ਉਲਟਾਏ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Today we are gathered to celebrate the Prakash Utsav of Sri Guru Gobind Singh Ji. If we strive to understand what message Guru Ji gave us and what principles and ideals he stood and fought endlessly for, then this will truly be a worthwhile celebration. Throughout this presentation, I will attempt to highlight some of Guru Gobind Singh Ji's divine teachings as communicated to us through his Bani in the Dasam Granth. This message is the word of Vaheguru through Guru Sahib and intended for the benefit of all mankind. The Supreme Lord sent Sahib Sri Guru Gobind Singh Ji to the world as an instrument to propagate the path of dharma or righteousness and stop people from committing acts of evil as explained through the verses. Akal Purkh baat chopai मैं अपना तोहे निवाजा पंथ प्रचर कर बै कहु साजा जाहे तहाँ तै धर्म चलाए कबुद करन ते लोक हटाए। Guru Gobind Singh Ji thus obeyed the command of God and blessed the world with his divine presence on January 5th, 1666 in Patna, Bihar, India to begin his holy mission of spreading righteousness. He held the utmost faith that his mission would be successful through the assistance of the Supreme Lord as stated in the verses. दोहरा ठाड़ प्यो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। What was his mission? At the time of Sri Guru Gobind Singh Ji's visit to the world, evil tyrants were plundering and taking advantage of the helpless and poor people of India. Guruji, through his limitless mercy, sought to raise these people up from constant oppression and poverty and give them the courage and backbone needed fight against the evil rulers of the time. Thus, from the oppressed and beaten rose a new order of saint soldiers called the Khalsa Army, who fought for righteousness and fair treatment for everyone, not only Sikhs. Through Khande de Pahal, he instilled a martial spirit in them, such that nothing could come in their way or deviate them from the path of dharma. This is explained through the verses.
हम एह काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। Guruji had utmost conviction in the worship of only one God and strictly condemned any other false forms of worship such as the worship of stones, the pursuit of God merely through the wearing of religious outfits, and the worship of idols. He had limitless faith in reciting the name of Supreme Lord limitlessly to attain oneness with God. अखांड पूज हो नहीं, ना पेख पीज हो कहीं, अनंत नाम गाए हो, परम पुरख पाए हो। Guruji said, recite only the name of the Lord, which serves all purposes. Do not recite anyone's name, nor establish God in anything. भजोसो एक नाम्य, जो काम सर्ब ठाम्य, ना जाप आन को जपो, ना और थापना थपो। While Guruji was truly a messenger of God on earth, he warned us not to worship him as the Lord himself. Through the following verses, Guru Sahib ordained that those who call him the Supreme Lord, Vaheguru, would be condemned to hell. Guru Sahib considered himself a merely humble servant of the Lord. जो हमको परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड में पर हैं। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद ना रंच पछानू। The path that Guru Gobind Singh Ji propagated was simplistic in nature and involved only the devotees' humble prayer to God. Any other ritualistic or unnecessary worldly action in futile attempts to please God was strictly rejected, such as deliberate tangling of one's hair, earrings, or any other religious outfits as explained through the verses. जटाना शीस तारे हूँ, ना मुंदर का सदारे हूँ, ना कान काहू की तरह, कहियो प्रभु सो मैं करूँ। Guruji stated that those who exhibit religious outfits in the world to win people on their side will reside in hell, and the sword of death will chop them. दोहरा, पेक दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल का ती कट्यो, बास नरक मो लीन। The most important aspect of the path of Dharma propagated by Guru Gobind Singh Ji is remembering God through reciting God's name. Guru Gobind Singh Ji clearly ordained that there is no other method of salvation other than God's name. बिनहर नाम न बाचन पाए, बेअंत नाम त्याए हूँ, परम जोत पाए हूँ, न ध्यान आन कोतरो, न नाम आन उचरो। These verses further reinforce Nam Jap and warn us to stay away empty deeds. क्यों ना जपो ताक को तुम पाई, अंत काल जो होए सहाई, फोकड़ धर्म लखो कर परमा, इनते सरत न कोई कर्मा। Summary: Guru Gobind Singh Ji taught us to follow the path of Dharma. Righteous, take Khande di Pahal and recite only God's name. Do good deeds and refrain from doing evil acts. Take arms against evil tyrants. Do not become religious by merely wearing religious outfits and articles because these are empty deeds. God stays away from the outward looks. Following this pathway is the gateway to hell. Believe in one and only one God. Reject idol worship and rituals. Do not establish God in anything. Recite God's name limitless. ठाड़ पियो मैं, जुड़कर बचन कहाँ से न्याय, पंथ चलाए तब जगत में, जब तुम करो सहाय।
At the time of Sri Guru Gobind Singh Ji's visit to the world, evil tyrants were plundering and taking advantage of the helpless and poor people of India. Guruji, through his limitless mercy, sought to raise these people up from constant oppression and poverty and give them the courage and backbone needed fight against the evil rulers of the time. Thus, from the oppressed and beaten rose a new order of saint soldiers called the Khalsa Army, who fought for righteousness and fair treatment for everyone, not only Sikhs. Through Khande de Pahal, he instilled a martial spirit in them, such that nothing could come in their way or deviate them from the path of Dharma. This is explained through the verses. हम ये काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो, दुष्ट दोखिया पकड़ पछारो. Guruji had utmost conviction in the worship of only one God and strictly condemned any other false forms of worship such as the worship of stones, the pursuit of God merely through the wearing of religious outfits, and the worship of idols. He had limitless faith in reciting the name of Supreme Lord limitlessly to attain oneness with God. अखान पूज हो नहीं, मैं पेख पीज हो कहीं, अनंत नाम गाए हूँ, परम पुरख पाए हूँ. He said, recite only the name of the Lord, which serves all purposes. Do not recite anyone's name, nor establish God in anything. जो सो एक नाम्य, जो काम सर्व ठाम्य, ना जाप आन को जपो, ना और थापना थपो. Guruji was truly a messenger of God on earth. He warned us not to worship him as the Lord himself. Through the following verses, Guru Sahib ordained that those who called him the Supreme Lord, Vaheguru, would be condemned to hell. Guru Sahib considered himself a merely humble servant of the Lord. जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है. मुझको दास तवन का जानो, या मैं भेदना रंज पछानो. That Guru Gobind Singh Ji propagated was simplistic in nature and involved only the devotees' humble prayer to God. Any other ritualistic or unnecessary worldly action in futile attempts to please God was strictly rejected, such as deliberate tangling of one's hair, earrings, or any other religious outfits as explained through the verses. जटाना शीस तारे हूँ, ना मुंडर का सदारे हूँ, ना कान कहूँ की तरह कहो प्रभु सो मैं करूँ. That those who exhibit religious outfits in the world to win people on their side will reside in hell, and the sword of death will chop them. दोहरा, एक दिखाए जगत को, लोगन को बस की, अंत काल का ती कटेव, बास नरक हो नींद. What an aspect of the path of Dharma propagated by Guru Gobind Singh Ji is remembering God through reciting God's name. Guru Gobind Singh Ji clearly ordained that there is no other method of salvation other than God's name. बिरहर नाम न बाचन पाए, व्यर्थ नाम ते आए हूँ, परम जोत पाए हूँ, न ध्यान आन को तरो, न नाम आन उचरो. These verses further bring forth नाम जप and want us to stay away empty deeds. क्यों ना जपोता को तुम पाई, अंत काल जो होए सहाय, फोकड़ धर्म लखोकर परमा, इनते सत्य न कोई कर्म. Guru Gobind Singh Ji taught us to follow the path of Dharma. Write yes, take Khande di Pahal and recite only God's name. Do good deeds and refrain from doing evil acts. Take arms against evil tyrants. Do not become religious by merely wearing religious outfits and articles because these are empty deeds. God stays away from the outward looks. Following this pathway is the gateway to hell. Believe in one and only one God. Reject idol worship and rituals. Do not establish God in anything. Recite God's name limitlessly.
descendants and true beneficiaries of Guru Sahib's legacy. Not only did Guruji communicate his teachings, he also followed them and felt the worldly pain and loss of strength through the path of dharma. Although he may have lost all of his family, he never acknowledged such a loss, for he considered the Khalsa to be his true sons, daughters and family. Today, as we celebrate his Prakash Utsav, let us strive to be worthy descendants of such a legacy and be proud of our faith. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Gobind Singh Ji. नन्हे दे थले छोटी जी चीज कही है, छोटी जी वो भी पढ़नी है। महाराज ने बकायदा कोई चीज नहीं लिखी। और छोटा हाहा है, अनंत है। जिना नहीं कहना जिना हाँ थोड़ा जा हाहा बताना तुम हलंत के ऐसे ज्ञान से तो छोटा हाहा भी बनाना क्योंकि ताल भी पूरी बैठेगी। जिना भेटा मेरा पूरा सत्य गुरु, सत्य गुरु कहना है। केड़ा गुरु सदा ही हम अंदर भेटना वो सतगुरु है। जिना भेटा मेरा पूरा सत्य गुरु, सत्य गुरु हर नाम मेरा राम राजे, हर नाम मेरा राम राजे। इसकी तृष्णा भूख सब जो हरे
अमृतसर साहब की गरीबी देखनी है अखीरली लाइना जिन्होंने मेरा पूरा सतगुरु भेटिया अपना सतगुरु मेरा सज्जन प्रीतम प्यारा किन्ने का रैंक है इस वजूद में लेकिन वो इंसान नहीं जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु उन्हें अंदर आन के तुहानू नाम दरड़ाउणा बाहर शब्द मिलता हर एक नूं और बड़ा भुलेखा है कि इतने सतगुरु को नाम लिया तुसीं तुहानू पत्नी कित्थों लिया नाम केड़ा करोड़ की जड़ा कंटे घाट दिता सतगुरु ने कढ़ अभी प्यार ना उन्होंने समझा रहे कि चंगे हो कि शब्द लैके आए हो जपन वाला गुरु का काम है तुहानू शब्द देना तुसीं लैके आए हो पर जो दरड़ाउणा है साडे भी संघां च बड़ा भुलेखा पिया जी पंजां प्यारिਆਂ को नाम दरड़ाना असीं बड़े प्यार नाल बेनती करदे दरड़ाउण दा लफ्ज़ ना क्या करो पांच प्यारे सिर ते हथ ने नाम नहीं दरड़ाउंदे क्यों किसी की तृष्णा भुख मरी उत्ते नाम दरड़ा गए जदों आण के अंदर नाम दिंदा है दृढ़ हो जाता तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे और उत्ते आउण दी अवस्था चले जाते एक जपन की पहली अवस्था दूसरी ध्यान की तीसरी हिरदे च सिमरन की चौथी संभालण की उहदे दर की अवस्था फिर निव की अवस्था ताली की अवस्था खरे किनिया कहां स्टेजे पे पहले जपन की है फिर ध्यान की है ये उन्होंने जिक्र है जिन्हों के अंदर ध्यान लग जाता है और जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु वो जो सतगुरु है वो यूनिवर्सल सतगुरु है ग्लोबल सतगुरु है सारे मजहबों का साझा सतगुरु है क्राइस्ट का वो सब पावर बाइबल च इनू होली गोस्ट किया है कुरान शरीफ च इनू रब्बे ऑलियन किया है असं रिलेटिव स्टडी कहाँ कर रहे हैं कि इन्हें बड़े बड़े मजहबों में सारा ही जोड़न हारा लिंक का जिक्र तो रब्बे ऑलियन और अल्लाह बहुत बड़ी चीज है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਕ और रब कहना रब्बे ऑलियन और उधर बाइबल के विच इहनूं होली घोस्ट कहा भी एडा बड़ा जिन है पर है होली घोस्ट वो भी मिलने वाला सारे सानू मधुवंश भी लिंक मिल रहा कि कोई चीज ऐसी जोड़न वाली है इतने साडे सारे ना बंदा संत कर ले जी वो जोड़न वाले साड़ी बाणी नहीं मानती जोड़ेगा तो वही पावर जी वो इस तरह है जिदा असीं क्या करते हैं कि रब आप है उसकी एक लेफ्टिनेंट पावर है सारी विद्या और सारा काम कर कारण करावन सगल विदे सो सदे गुरु हमारा उन्हें सब कुछ करना और उन्हें भेटना की अंदर है उन्हें अंदर आना और बाहरों नहीं आना कदे अंदर ही गोपिया पिया जी लुकिया पिया जी उन्हें कढ़ना प्रगट करना कर प्रगट आठ सुना है वो जदों प्रगट अंदर हो जाता है उदों फिर आन के नाम दरड़ादा है फिर जिदा सतगुरे नाम निदान दरड़ाया प्रहलाद नूं राजमाल झूठी वो भी उसे जुग भी हुई है जग जग है जोग जोग पीढ़ी चले सतह गुरु की कितना इंसान पूरी कर दूंगा चीज गुरु बाणी की जोग जोग पीढ़ी चले सतगुरु की और सतगुरु इंसान वाले को दे बरोबर बहन आ जा अपने आप को कहना ये नहीं हमारे नहीं उन्होंने नहीं पता इस बाणी का सतगुरु केड़ा है सिखा नहीं पता इस करके सतगुरु अपना समझो और उसके लिए अच्छा करना है ये ना भेटा मेरा पूरा सतगुरु पूरा सतगुरु दिन हर निर्लावे राम राजे पांच प्यारे की शब्द दिंदे सानू और बोल बोल के जपना जितना कहते बोल वाहिगुरू जी का खालसा बोल के गुरमंत्र सानू मिल जाता है इस करके वाहिगुरू गुरमंत्र जिहड़ा है उथे ये नहीं कहते बोल सतनाम वाहिगुरू जी का खालसा सतनाम वाहिगुरू जी की फजल की लॉजिक दे रहे हैं उन्हें भज पाई जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है दसम पातशाह ने जो राह चलाया डीविएट नहीं होना उन्होंने कहा सिर्फ फतेह बुलाउंगा शुक्र करो सारी सिक्खी कोई जैसा किदा भी सिखाता अभी बड़े खुश हैं कि ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी बची है सारियां नूं घुमाउणा पैंदा
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜੇ ਦਿਨ ਧਰਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ और कहते तुम मेरा नाम ही राय मगर वो चाहो सिंह ना रखे आज दे दिन इस करके खालसे का जन्मदिन नहीं है। खालसा मैंने गुलाम खालसा मैंने बहुत गरीबी का लभदा और इको बारी बाणी च आया कहो कबीर जन पै खालसे प्रेम भगते जिन्हें इको बारी खालसा का नाम और खालसा गरीबी का लभदा है। अभी मुछा मुता दे कहते जी खालसा वो खालसा गरीबी का लभदा मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम खालसा गुलाम छले ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਤਾਣਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਤੇ ਲਾਗਾ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ ਭਗਤੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पीए था पानी आनी मीरा मीरा कहते बादशाह नु गुलाम पानी खड़े होंगे सी पक्का चलते सी सारा कुछ आप अफ्रीका तो फड़ के लिया जो मुगल या सारा जिन्हों की हुकूमत हुई है इस करके सलेवरी दूर की अब्राहम लिंकन ने साडे उस अमेरिका की इधर बाबे नानक ने दसिया रब दे सलेब बनो तभी उत्थे लिखिया मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम मैं अन लकी गुलाम नहीं अन लकी गुलाम मैं कोई मेरा मालिक है मुल खरीदी लाला गुला मेरा नाम सुभागा मैं इस गुरमंत्र तो देखा जो मेरे वाहिगुरू छड़ दिता हमने गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा क्योंकि गुलाम की औलाद भी गां गुलाम होंदी सी बच्चे भी गुलाम होंदे सी गुलाम के मथा पैसा ता के मथे के उत्ते निशान बना दिता जाता सी उसकी सारियां गां औलादां सारियां जब तक के वो जो मालिक आ उन्होंने फ्री न करे आह गुलामी की फिड़क महाभारत भी थी भीष्म पितामह जिन्हें जंग से चढ़ता अपने दास आजाद करके जाता है। ये सारे गुलाम बीबियां गुलाम रखिया होंगी सी सारियां इस करके गुलामी ऐसी पैड़ी चीज सी जी कि दसम पातशाह एक कड़ी और क्या भी कोई बंदा बंदे का गुलाम ना हो इसे करके पंजा गुरु गुरमंत्र लाओ कंधे को उन्होंने लाओ डिक्टेटरशिप दुनिया की खत्म की थी। डिक्टेटरशिप ऐसी लानत है दुनिया के आज शेरा काम दे तीन डिक्टेटरों को दुनिया हिटलर मुसोलिनी और रशिया का स्टालिन इन्होंने ये सारी लहर उठी और साढ़े पहला ही गुरुआना है डिक्टेटरशिप दसम पातशाह ना और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग दुनिया के कह रहे हैं कि पंजाब एक ऐसा गुजोग को छुटिया गुरु जिन्हें गुरु डांग खत्म की है डिक्टेटरशिप खत्म की है रिलीजन कोई किसी का पंजा के हवाले सारे पंजा से सारी चीज बताई ताए कारा वरते आज विसाखी वाले दिन और जो खालसा सी खालसा लभदे नहीं है असी सदा जी जुड़े हैं टीम की चीज दसदी है गंडा सिंह हिस्टोरियन बतारा आज से चला गया है नहीं इस दुनिया से पर बहुत साल पहला समुद्री सिंह तेजा सिंह समुद्री हाल च दास की ड्यूटी सी कि जो हिस्टोरियन ने गंडा सिंह पेपर पढ़े तुम कीर्तन राही उन्हें साफ करना पावेगा यही ड्यूटी लगी सी उस वे उठे पेंट पाना सी जेब च हथ पा के कहना कि खालसा तुसी सारे कही जाते हो खालसा लफ्ज गुलाम है गरीबी का लफ्ज है उन्हें अपना सारा बस्ता चक के पेपर पढ़ लगे लिया सी लिखत और उर्दू और पश्चिम का आलम सी उस वे कहना आ देखो पेपर में पढ़ रहे हैं उस सारी जायदाद का क्या हुआ जब गुरु गोबिंद सिंह जी छोड़ गए आनंदपुर और माखौर लिखे आपके माखौर जब वो छोड़ गए धरती और पीछे इन्होंने मुगलों ने उड़ारा फट कोई मकान नहीं रहने दिया उस जमीन का क्या हुआ तो लिखा सारी जमीन को आज से खालसा करार दिया जाता है तो ठीक है ये संभालने की है सारी जमीन को खालसा करार खालसा समझो चढ़े तरंग
ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਵਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਦੀ ਕਹੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁੱਟੀ ਬਚਨੀ ਹੱਕ ਖਾना ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਤੇ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਇੱਕ ਲੱਗ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੇਰਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਇਹ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰ ਮੇ ਆਪ ਸਮੋਏ ਗੁਰ ਮੇ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਅਸਮੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਰੱਜਾ ਤਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰ ਮੇ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਮਾਈ ਬਾਪ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਮਾਈ ਬਾਪ ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਮਾਈ ਬਾਪ ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੱਭੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੇਰਾ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣੀ ਜਾਉਂ ਪੱਖਾ ਪੀ ਪੈਰ ਮਨਵਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੱਲਦੇ ਸੀ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕੋ ਅਗਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੇਰਾ जाए तो पीसन जाऊं खाए तो पीसन जाऊं और पैर मलवा और पक्का घेरू पैर मलवा कि न कर दो जब रहा तेरा नाम मेरा नाम जब सब करके मैं नहीं हुक्स करता जब रहा तेरा नाम खीर देते पाए दे कोई हद्दी रहने गुरु नानक दे इस करके पिए तो पानी आनी मीरा खाए तो पिसन जाऊं पक्का फेरी पैर बुलवा किदा जब रहा तेरा नाम और कहते मैं ते नून हरामी ना नानक लाला तो ये बख्श लेगा तो तेरी बुराई है मैं अगे मेरा के नाम ये तेरी बुराई है हजे नून हरामी ਨੂੰ बख्श ले देखा कि नून हरामी नानक लाला बख्शे तो बुराई पर तू बख्शण रह नहीं सकता तू तेन जुग जुग का पुरुष भेजा बख्शण का उसे ले निकल गया महाराज ना बख्शे तो बुढ़ियाई आ जुगात तो बख्शदा रहा तो मैंने क्या बख्शे आ जुगात दया पत दाता तो दिन मुक्त ना पाई असी सदा सिख कौम ने जगाने बाबा नानक कहता वो बगैर मुक्त नहीं मिलनी 40 मुक्ते अरदास च ना क्या करके 40 मुक्ते नहीं थी चंगे सिंह सी शहीद हो गए सी मुक्त कोई किसी को अथॉरिटी नहीं है कोई किसी को मुक्त कर जाए गुरु आज बात दया प्रदाता खुद दिन मुक्त ना पाई बाबा नानक कह रहे और चंगे सारे लेकिन असी हौली
भी अपनी अरदास की करिए कि बाणी के हिसाब नाल चीज मुक्त नहीं उन्होंने कहना मुक्ता नाम जपने के बगैर हो ही नहीं सकता कोई बिन नामे मुक्त ना होई सुन तो तू बाबा नानक कह रहे इस करके सतगुरु अही दाता मुक्ति का है और नाम का है इस करके जो काली मुक्ति अर्जन करो सब प्यार लेकिन हौली हौली सानू इतिहास अरदास बदलनी पैनी इतिहास बदलना पैना आज जो सार असी दस रहे हैं और आवा शब्द चानन बोलावा हम फरीदी कि असी लाडे बोले गरीबी सीखनी है जो पहले बाबा को आ रहे या संत को आ रहे उसके अंदर गरीबी कितों होनी इस करके सारी सारी सिक्खी दे विच गुरु रामदास साहब कहते भी तुम चंगे हो धन धन पाल जिना पाल संत जना जो हरनामा वो कहता धन धन पाल जिना साध जना जो कीर्तन गाए गुणी जान बन पिया पर सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के बाणी गुरसिख हो के लिखी है बाणी लाला गोला हो के सारी और सतगुरु तो आउंदी सी इन्हां नूं इस करके जिहड़ा ये है कि जदों अंदर सतगुरु आ जाता है वो आन के नाम अंदर लाउंदा उदों बंदे की तृष्णा कुप्सा उतरती है जो नाम ते आउंदा है ते जिहड़ा जपदा हली है उन्हें जम ले जाणगे दिन चक्कर ते आउण दी अवस्था नहीं आउणी उत्ते कंडीशन उहदे लागे जम नहीं आउणे जदों अंदर ते आउण दी अवस्था हो जाती दूजी अवस्था है जब नानक नाम ते आया गुरबचने जपियो मने छी ते कांडे दी वार बाणी तू जिथे एक संदेश दिता ध्यान वालियां दे लागे नहीं आउंदा पर जपन वालियां नूं बड़े सत्कार नाल ले जांदा और चूके धक धक्के उन्हां नूं धक्के जिद्दां पुलिस वाली जांदी इदां नहीं इन्हां ने किदां नहीं आंदे जिद्दां महात्मा गांधी ते नेहरू नूं ले जांदे पोलीटिकल उन्हां नूं भी पुलिस लगी कड़ियां लगियां सारियां पर कितना उन्होंने सारा जेलों उन्होंने लाइब्रेरियां मिलिया आज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने उत्थे लिखी सारे महात्मा का अंदर किन्ने ऐदा जो नाम थोड़ा भी जपते है ना वो जमा तू डरना जो उन्होंने नाल भी ताड़ी अरदत ऐ जान के पर ध्यान वाले दे लागे नहीं जान के ते गुरु बाबा गुरु रामदास साहब ने गरीबी देखे कई मैनू हली इन्नी कृपा कर कि मैं नित जपी जाना मैं उसे जल्दी हाकली देखो जब नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम नित ने भी ना करता रहे नाम भी जपे नित जपे हर नाम तरावे नहीं कहना हाँ देखा तैयारी ताही असी प्रकाश करते देखे ताकि साड़ी कल्टीवेट जुबान हो जाए जो लफ्ज लिखे वो उठाओ ता ठीक आएगी आवाज जिन नित जपे हर नाम मैं नीति जपदा रहा और हर नामे करावे फिर नाम ना तू कराई और उतनिया की पिटीशन है कि जिन्ना को भेट लिया और सतगुरु अंदर आंदा मेरे अंदर तेरी कुछ नहीं आया तो मैनू यो कृपा कर कि मैं नीति जपा रहा और यो गुरु बाबा नानक ने अपना किया कि जप तप संयम कर्म ना जाना है नाम जपी सिमरिया नहीं लफ्ज देखने बाबे नानक दे जन जप मैं नहीं औखा कोई भी काम करना जप तप संयम कर्म ना जाना है नाम जपी प्रभ तेरा मेरा कोई गुरु कोई बंदा गुरु नहीं मैं कीता कोई नहीं मैं कीता मेरा गुरु की है परमेश्वर की है और मानू का देना फरदा ना चीजा अगली तुक पहली तुक है घोर पहली अगली तुक है घोर परमेश्वर नानक भेटियो साच सब दे नबेरा शब्द चौकी चलती रखांगे जीठिया सारे गांव अगली बैठ चलांगे पहला बाबे जिदा गुरु रामदास साहब जपना मंगते हैं बाबा नानक कहता भी मैंने कुछ नहीं चाहिए ना परमेश्वर के राजे ओंकार नानक दे कके ओंकार कि मैं किया है गुरु परमेश्वर नानक भेटियो
ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਖੇ ਆਖੇ ਸਭ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਆਖੇ ਆਖੇ ਸਭ ਆਖੇ, ਆਰਦ ਪੁਰਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੌਲ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। साथे तीर ने क्यों बार दिया है, साथे तीर ने क्यों बार दिया, ना प्रेम बिछो हर साजन पर विसार है, लड़की माया
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਮਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਸਿਵਾਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਫਲਗਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਕਾਲਣੇ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਸਾਖੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਸਾਖੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ, ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲਗਤੀ ਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੋੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਐਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਕਾਰਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਧੋ ਮੈਨੇ ਧੋਖਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੇ ਜਾਂ ਕੋ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰੀ। तो पिछले सारे काफिले तो विशो मोह के गीत लिखते हैं, पोइट्री है। इस करके लगी माया तो ऐसा बड़ा माया का धोखा लगा भाई। और जिन्हें प्रेम विशो जिहड़े कि प्रेम को विछड़ गए, प्रेम विछोड़ा विछोड़ा जड़ा प्रेम तो विछड़ गए। साडा प्रेम भी नाम ही है, बाणी को बाणी न छोड़ना। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, जिथे प्रेम आ जाए वो साड़ी नाम ही इशारा है। चौथा पदार्थ है, सब ऊंचा पदार्थ है प्रेम पदार्थ, साज पदार्थ, नाम पदार्थ। एक गल है, पहला है जन्म पदार्थ, दूसरा है ज्ञान पदार्थ, तीसरा है श्री राम सुनते हैं चार पदार्थ देखो मांगा है। वो चार पदार्थ बाणी के बार बार आएंगे। ये सब ऊंचा पदार्थ है। पहला पदार्थ है जन्म पदार्थ, ऐसा मुल्क जन्म है, वो भी पदार्थ है साढ़े लिए। असं दसिया करते हैं कि शुक्र करो असी वो डिस्कवरी चैनल के समुद्र दी जूना च नहीं पै गए। इन्नियां जूना, इन्ना बंदा, इन्नियां जूना सानू मानस जन्म सब तो उत्तम मिले है कि मुल पाना असी। पहला जन्म पदार्थ जे ज्ञान न लिया बाणी का, असी पशुओं भी पैड़े काम करांगे। भावें बाणी पढ़ते नाम जपते हैं, जो बाणी के ज्ञान के मुताबिक नहीं चलते। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी नहीं वो हिसाब न अपना जीवन जो नहीं चलते हैं, असी पशुओं भी पैड़े रक्षित करांगे। तो दूसरा पदार्थ है ज्ञान पदार्थ, और चार ही खंड है, चार ही पदार्थ है, चार ही और चार ही सहज की अवस्था है। अगला ज्ञान खंड है, उस ज्ञान बंदे आता है। लेकिन साडा ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एंड पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। तो तुम पहला ना करिए आया तो नाम की लोड़ ही है। इस करके जिहड़े ऐस ज्ञान के मुताबिक अपना जीवन ही टालते, गुरबाणी का ज्ञान जिन्ना गुरु ग्रंथ साहब जी ने दिता है, तो उन्होंने विछड़े हुए है। इस करके माया के माया के अंदर ही सब कुछ पंजे साढ़े दूध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दियां सब उत्ते माया के अंदर ही सारिया चीज़ां। जदों बंदा माया च फस जांदा उन्हें सब तो बड़ा दुख लगता। और प्रेम जिहड़ा है ये चौथा पदार्थ है। पहला जन्म पदार्थ, दूसरा ज्ञान पदार्थ, तीसरा मुक्त पदार्थ मुक्ति।
ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਪੱਪਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਜ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ। ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੇ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੈਸਾਖੇ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂ